तत्वार्थ सूत्र में जो 7 भावनाएं, क्या कहते हैं, 4 भावनाओं पे चर्चा की, उन 4 भावनाओं के बाद में अब जो विषय आ रहा है वो विषय एक तरीके से बड़ा महत्वपूर्ण है कि दुनिया को जब हम देखते हैं तो दुनिया को किस प्रकार से हमें देखना चाहिए। जब हम दुनिया को देखते हैं तो हमें दुनिया को किस प्रकार से देखना चाहिए, यह बात तत्वार्थ सूत्र के एक सूत्र के माध्यम से बताई जा रही है, जिसका नाम है जगत काय स्वभाव व संवेग वैराग्यार्थम। एक मिनट इंतजार कीजिए, हम आपको अभी वो सूत्र पढ़ाते हैं। फुल स्क्रीन माथी एक सेकंड गैलरी में, हाँ बंद करूं पड़े पेला पहले चालू बचते क्या फाइल खुली ने मुकी थी। एग्जिट फुल स्क्रीन, ओके काम करिए। हाँ હવે એમાં જે સૂત્ર છે એ ઓપન કરું અને એમાં એવું થાય છે, પહેલી ફાઇલ ઓપન કરી તો કેમ નથી આવી? આજે બહુ ડિસ્ટર્બન્સ થાય છે। કોને મંગલાચરણ બરાબર નહોતો કર્યો? મંગલાચરણ કોને બરાબર નહોતો કર્યો મને કહો, બધું ગડબડ થાય છે। એક સેકન્ડ વેઇટ થઈ જશે, પણ મુદ્દા એ છે કે મેં ત્યાં એક્ઝિટ ફૂલ સ્ક્રીન કરી, આવી આપણી શેરિંગ ઓપ્શનમાં કેમ નથી આવતું? ચાલો ઝૂમ વાળો શેર કરવામાં જે ફાઇલ ઓપન છે એ ફાઇલ શેર નથી કરતો। ફાઇલ બેસિક્સ ચલો એડવાન્સ છે આને, આજે કઈ નવી પ્રોબ્લેમ ઊભી કરી એને। ઝૂમ માં હું શેર ઓપ્શન કરવા જાઉં ને તો પીડીએફ ફાઇલ ઓપન છે ને એ પીડીએફ ફાઇલ બતાવતો નથી, ઓપ્શન નથી આવતો। કોઈ એના વિષયમાં કઈ કહેશે? કોઈને કઈ આઈડિયા? તમે લીવ થઈ ગયા તા, પાછા હોસ્ટ થયા એટલે થયું હશે, ખબર નથી મને। શું કરીએ, શેર વિના કેવી રીતે કરીશું? હેતલબેન તમારામાંથી શેર કરો, કોઈ બીજામાંથી શેર કરો। ચલો આપણે હોસ્ટ બનાવું તમને। આ ફાઇલ પીડીએફ દિનેશભાઈ પાસે છે, એટલે જે ઓપ્શન આવવા જોઈએ ને એ ઓપ્શન પેલા શેરિંગ વાળા જે જેમ કરતા હતા નીચે આવી જતા હતા ને એ આવતો નથી। અને એમાં તમને દેખાય છે અત્યારે કઈ? શું દેખાય છે? આવા ઓપ્શન આવે છે, એમાં જે પીડીએફ વાળો જે મેં ખોલીને રાખી છે આ અહીંયા દેખાતો નથી। શેર કરવા જઈએ, આવ્યો અત્યારે, પણ આ કેવું અવ્યવસ્થિત જેવું આવે છે? આવશે, આવી ગયું, સરસ। આ વચ્ચેનો કેમ ચાલે છે? જગત અને કાયનો સ્વભાવ संवेग અને वैराग्य માટે કરવું જોઈએ, बराबर। संवेग और वैराग्य के लिए जगत के स्वभाव और शरीर के स्वभाव की भावना भरनी चाहिए। बोलो जरा एक बार, जगत काय स्वभाव हुआ? અભિષેક ભાઈ આખું નથી દેખાતું, આખું નથી દેખાતું, આખું નથી દેખાતો। સ્ટોપ શેર કરીએ, હવે ઓપ્શન જોઈએ આવી જાય તો બેસિક નો આમ કરીને પણ આમાં સ્લાઇડ દેખાવે, નહીં દેખાતો હશે ને? ના નથી દેખાતું। હા, કેમ કે અત્યારે મારા સ્ક્રીન ઉપર દેખાય છે। શેર સ્ક્રીન કરીએ ને ત્યારે શેર સ્ક્રીન કરતા
પેલો ઓપ્શન નથી દેખાતો, ફરીથી એકવાર ઓપન કરીને જોઈએ, કદાચ દેખાય તો સારી વાત. ઝૂમ ઝૂમ. કઈ વાંધો નહીં, હવે એ લાગે છે આજે અંતરાય છે આપણે. દાદા તમે જ બોલી નાખો. હા તમે જ બોલો હવે. બોલું, ને મૂકી દો. બોલી દઉં. ચલો વાંધો નહીં. સંસારના સ્વરૂપનો વિચાર સંવેગ અને વૈરાગ્ય માટે કરવું જોઈએ. બધાની પાસે મેં પીડીએફ શેર કરેલ છે અને કદાચ એમાં હશે પણ દુનિયાને જોઈને આપણે કરવું શું છે, આ બહુ મુદ્દાની વાત છે. આમ જોવા જઈએ ને તો આ આખો પ્રશ્ન છે ને આખા વ્યાપારીનો પ્રશ્ન છે કે ભાઈ મુદ્દાની વાત કહું ને, આખા જગતનું આપણે વિચાર શા માટે કરવું જોઈએ. જેમ કે ધંધા પાણી હોય એ શા માટે કરાય? બોલે લાભ માટે. હરવા ફરવા શા માટે હોય? મજા માટે. બરાબર. તો એવી જ રીતે દુનિયા જે તમે તત્વનો વિચાર કરાવી રહ્યા છો, ત્રણ લોકનો વિચાર કરાવી રહ્યા છો, આટલા બધા વિચારો અમને કરાવી રહ્યા છો, આ બધા વિચારો શા માટે હોય? તો ત્યાં આચાર્ય કહે છે આ બધા વિચારો માત્ર ને માત્ર બે કારણોથી હોવા જોઈએ. એક, તમે ટીવી જો, નેટ જો, ચાહે દેવશાસ્ત્ર ગુરુની શરણમાં જઈને જ કામ કરો, ચાહે ગૂગલ ગુરુની શરણમાં જઈને કામ કરો, તમને બંનેની શરણ લઈને એક જ કામ કરવું છે, દુનિયાને જાણીને કે દુનિયાનો સ્વરૂપ સંવેગ અને વૈરાગ્ય માટે છે. સંવેગ શું કહેવાય અને વૈરાગ્ય શું કહેવાય? આપણે નથી લાગતું કે આપણે જે વસ્તુ જે રીતે વાપરવી જોઈએ એ વસ્તુને એવી રીતે વાપરતા નથી. હે સમજ્યા? ખ્યાલમાં આવે છે કે નહીં? કોઈ તમારી સામે આમ ચાઇનીઝ ને આમ રોટલીની જેમ ખાય અને રોટલીને નાના નાના કટકા કરીને ચાઇનીઝની જેમ ખાય તો તમને કેવું લાગે? એમ બોલો, વિચાર કરો. રોટીને ગળી જાય અને પાણીને આમ ચાવી ચાવીને પીવે, કેવો લાગે? એટલે જે જેવો છે એવું કરવું જોઈએ ને. એમ તમને કહું છું કે ભગવાન એમ ફરમાવે છે કે ભાઈ સંસાર વૈરાગ્ય માટે છે. અને આ લાસ્ટ યર્સ અને લાસ્ટ પેન્ડેમિક સિનારીઓ આ એટલો જબરદસ્ત રહ્યો છે કે જો કદાચ એનો થોડુંક પણ વિચાર કરે આ જીવ આ લાસ્ટ પેન્ડેમિક સિનારીઓનો, તો એને ખબર પડે કે આ ટાઈમે આ જીવે કેટલું બધું વૈરાગ્યના પ્રસંગો જોયા. ઇન્ડિયામાં તો અમે કહી શકીએ કે એક પણ ઘર એવો ના હશે કે જે ઘરમાં કોઈ વ્યક્તિએ કોઈ અંગતને ના ગુમાવ્યો હોય. एक बार मतलब ऐसा होता ही नहीं था कि एक दिन भी ऐसी एक आध खबर जाए कि आज वो ठीक है ना, वो एक्सपायर हो गया ना, वो ये सब विचार के करना था. इस शरीर की हमने सुरक्षा के लिए क्या क्या नहीं किया, बहुत उपाय किए, लेकिन बहुत उपाय करने के बावजूद भी शरीर तो अपना स्वरूप बताता है और उसके स्वरूप में रोग वैराग ही है. तो रोगों के लिए ये शरीर है, तो फिर हम शरीर का क्यों विचार करें? क्यों ना शरीर से विरक्त हो जाए? विचार करो. जिन्होंने ध्यान दिया उनको, जिन्होंने ध्यान नहीं दिया उनको बीमारी हुई, और जिन्होंने बहुत ध्यान दिया उनका क्या हुआ? वो भी बीमार हुए. विचार करके देखो. दुनिया में भी आप देखोगे तो आपको पता चलेगा. ये बात बड़ी अच्छी और सीधी सच्ची सी है कि हमारा चलता ही नहीं है कुछ. व्यापार में अगर आप देखोगे तो भी आपको ख्याल में आएगा कि भाई कुछ भी नहीं है संसार. जहां देखने जाओ हम अपनी बुद्धि लगाते हैं, जहां लाभ होने की इच्छा होती है वहां हानि हो जाती है, और जहां सोचते हैं कि बिल्कुल हानि होगी वहां पे लाभ हो जाता है. हम शरीर का सोचते हैं कि शरीर स्वस्थ रहे, बीमार हो जाता है. हम अपने परिवार का सोचते हैं कि वो हमारे हिसाब से चले, लेकिन विमुख हो जाते हैं. हम सोचते हैं ये ऐसा हो वो वैसा हो. कौन सी ऐसी चीज है जो हमारे हिसाब से नहीं होती है?
गंभीरता से देखोगे तो आपको कुछ भी दिखाई नहीं। देखो, जैसे कंप्यूटर को जब बाइनरी कोड वाला सिस्टम था, तो बाइनरी कोड वाले सिस्टम में दो बातें होती थी केवल। क्या होता था, कंप्यूटर का जो पूरा प्रोग्राम चलता था वो मुख्यतः दो बातों को लेकर चलता था, एक 0 और एक 1। कौन कौन सी दो बातों को लेकर? एक 0 और एक 1। और वो 0 और 1 के आधार पर ही सारा का सारा प्रोग्राम रन होता था। उसी से चित्र बन जाते हैं, उसी से गेम्स हो जाते हैं, उसी से मूवी बन जाती है। सारी चीजें अगर होती हैं तो 0 और 1 के माध्यम से ही होती है, बराबर। तो जैसे कंप्यूटर में वो 0 और 1 है, और वो 0 1 के लिए वो सब हमारे लिए कंप्यूटर को जानते ही नहीं है, बस 0 1 0 1 0 1 के आधार पर वो पूरी की पूरी अपनी प्लानिंग और परिणाम बना देता है। वैसे ही आचार्य कह रहे हैं कि तू चाहे जंगल में रहे, चाहे नगर में रहे, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, चाहे गूगल से पढ़े चाहे ग्रंथों से, चाहे ऑनलाइन जाए चाहे जूम में आए, मित्रों के बीच में हो चाहे शत्रुओं के बीच में, तुझे कुछ और करना ही नहीं है। तुझे मात्र और मात्र केवल दो बातों का विचार करना है। कौन कौन सी? ये सारा जगत क्या है? तेरे लिए ज्ञान और वैराग्य का कारण है, संवेग और वैराग्य का कारण है। इसके अलावा तू अगर और कोई काम करता है तो जिनवाणी के साथ में तू अन्याय करता है। ख्याल में आया? समझे कि नहीं समझे? है ना? इसीलिए जगत काय स्वभाव हुआ। देखो, आप जगत को विचार करके अर्थ और ध्यान करोगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, आज की पेपर की बात है। आज जिन्होंने दिव्य भास्कर सुबह सुबह देखा होगा, उनके लिए एक बड़ी सुखद खबर सी मिली होगी। कौन सी दिनेश भाई? है, दिव्य भास्कर पढ़ते हो? कौन सी खबर मिली होगी? एक ही खबर आई है सुबह से, जो जो सबके लिए बड़ी वो थी, मार्मिक। कौन सी? कि तीसरी लहर नहीं आएगी, ऐसा किसने कहा है? एम्स के डॉक्टर जो गुलेरिया हैं, उन्होंने कहा। अब आज ये भोंपू चला दिया, तीसरी लहर नहीं आएगी। 1.5 महीने पहले से हम ये भोंपू चला रहे थे कि अब आएगी, अब आएगी, अब आएगी, है। अक्टूबर अगस्त में आएगी, सितंबर में आएगी, अक्टूबर में आएगी, मतलब ये क्या है? और जब जब ये सुनते थे तब तक हमें संसार की असारता तो ख्याल में नहीं आती थी, डर जरूर लगता था। और आज भी हमें ये ख्याल में नहीं आ रहा कि वस्तु व्यवस्था स्वतंत्र है। आज भी हमें ये जरूर ख्याल में आ रहा है, कितनी अच्छी बात है, दोनों में राग द्वेष कर रहे हैं, दोनों में हम राग द्वेष कर रहे हैं। कैसे? कि वस्तु व्यवस्था स्वतंत्र है ये नहीं जान रहे। आने योग्य आई ना तो गुलेरिया के कहने से चली जाएगी, और ना पहले वालों के कहने से आएगी। आना भी स्वतंत्र है, जाना भी स्वतंत्र है, लेकिन उसके बावजूद भी हम राग द्वेष करने से बाज नहीं आते। बात समझ में आई कि नहीं आई? इसीलिए अगर हमने पुराने को देखकर अर्थ ध्यान किया होगा तो आज विचारो, अगर वो नहीं आई तो उसके बने हुए कर्म बंधन से क्या हम बच पाएंगे? पॉइंट समझ में आया कि नहीं? क्या कहना चाह रहा? जो कर्म हमने कोरोना का विचार कर करके बांधा, क्या हम उस कर्म के बंधन से बच पाएंगे? मूर्खता नहीं हो गई हमारी कि हमने उस जिस जिस चीज को होना ही नहीं था उसके आधार पर हमने इतने सारे कर्म बांध ली। समझ में आया? इसीलिए ये चीज को थोड़ा विचारना है कि अब हम किसी भी रूप में उन कर्मों को बांधेंगे नहीं। अगर दुनिया का स्वरूप हम देखेंगे, कोई हो तो भी, ना हो तो भी, कोरोना आए तो भी ज्ञाता, नहीं आए तो भी ज्ञाता, और अगर हो भी जाए तो भी क्या करना? कि हमें मात्र वैराग्य भाव पुष्ट करना है। कौन सा भाव? वैराग्य भाव पुष्ट करना है, और कुछ नहीं। वैराग्य के अलावा और क्या कर सकते? संवेग और वैराग्य, मात्र और मात्र दो ही चीजों का विचार हमें करना है। देखते हैं थोड़ा आगे बढ़कर कि संवेग क्या कहलाता है
और वैराग्य क्या कहलाता है। देखो पहले नंबर थोड़ी कुछ फंडामेंटल इसमें 3 बातें आई हैं। एक तो है जगत का स्वभाव, दूसरा है संवेग और तीसरा है वैराग्य। 3 बातें ना सूत्र में, जगत का है स्वभाव हुआ, संवेग, वैराग्य आता। जिनके पास मैंने पहले स्लाइड दी थी अगर वो हो तो जरा उसको टैली करें। जगत के स्वभाव के बारे में 3-4 बातें बता रहे। देखो सबसे पहले जगत की रचना कैसी, तो जगत की रचना अनादि निधन है। कैसी है? अनादि निधन। मतलब किसने बनाई? बोले किसी ने नहीं बनाई। और किसी ने नहीं बनाई है तो कौन चला रहा है? जब बनाई होगी किसी ने तो चलाएगा, अगर किसी ने बनाई ही ना हो तो कौन चलाएगा? बात आ रही कि नहीं आ रही ख्याल? तो सबसे पहले जब भी आपको ख्याल में आए कि भाई दुनिया के बारे में विचार करना, तो ये दुनिया अनादि निधन है। और अनादि निधन जैसे ही सुनो तो इस दुनिया का एक हिस्सा मैं भी हूं। तो अगर दुनिया नष्ट नहीं होगी तो मैं भी नष्ट नहीं होगा, और अगर मैं नष्ट हो गया तो दुनिया भी कभी ना कभी नष्ट हो जाएगी। ये बात जानकर अंदर से भय रहित निर्भय हो जाना। कोरोना तो अभी आया, बीमारियां तो हजारों साल से हैं। नरक की बीमारी, त्रिंच की बीमारी, 1000 प्रकार की बीमारियां हैं, लेकिन आत्मा हमेशा से अनादि अनंत रहा है और रहेगा। इसका मतलब कोई भी बीमारी मेरे अस्तित्व को छूती नहीं, क्योंकि मेरा अस्तित्व लोक की भांति अनादि अनंत है। किसकी भांति अनादि अनंत है? लोक की भांति हमारा अस्तित्व अनादि अनंत है। ये बात हमें यहाँ से जानने को मिलती है। उसके बाद अगर हम थोड़ी इसके अगले स्वरूप पर जाएं, लोक की और कौन सी व्यवस्था है कि इसके भोग कैसे? बोले इसके भोग, पदार्थ और भोग जो है वो अनियत और क्षणभंगुर। कैसे हैं? जो भी पदार्थ है वो नियत नहीं, अवस्था की अपेक्षा से देखा जाए। अब वैराग्य की बात ला रहे। आज आप अपने रूप को देखो, रूप को देखकर बारंबार ये विचार करो कि मेरा ऐसा रूप हो जाए, मेरा वैसा रूप हो जाए। लेकिन भाई तेरा रूप नियत नहीं, किसी का रूप भी नियत नहीं होता, किसी हालत में नियत नहीं हो सकता। अगर वो क्षीण हो रहा है तो वही उसका स्वरूप है, क्षीण होना ही उसका स्वरूप है। समझ में आ रहा? क्षीण होने वाले स्वरूप को जो समझ जाता है वो क्षीण होती अवस्था में दुखी नहीं, और जो क्षीण होते हुए स्वरूप को देखकर उसमें नित्यता की कल्पना करता है वो व्यक्ति नियम से दुखी होता है। ये यहाँ पे थोड़ी समझने जैसी बात आती है। बराबर समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, तो क्लियर हुई ना बात कि जगत कैसा है, भगत भोग कैसे हैं, क्षण भंग। और रियल में एक एक चीज अगर आप देखने जाओगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें नित्यता का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं। जो भी चीज आप देखते हो बाद में क्षण भंगुर निकल जाती। आपको आज इस चीज में मजा आ रहा है, कल वो निस्सार लगने जाएगी। समझ में आया? यही इसका स्वरूप। कोई भी वस्तु कैसे भी जगह किसी भी कंडीशन में जाकर आपके लिए कभी भी सुखदायी होती नहीं है। ये इसका नियत स्वरूप है। बराबर? क्षण भंगुरता। फिर स्वरूप कैसा है? नाना योनियां है, 84 लाख योनियां शास्त्रों में कही जाती। कितनी योनियां हैं? 84 लाख योनि। और वो एक भी योनि इनमें है कि जो सुखरूप हो। योनि मतलब समझते हो? जहां जीव उत्पन्न होता है। आप थोड़ा सा विचार करो, आप एक ऐसे किले में हो जिसके 84 लाख दरवाजे, बराबर आपको किसी ने बंद करके रख दिया, और आश्चर्य की बात है कि 84 लाख दरवाजों में से 83,99,999 दरवाजे आपको पुनः पुनः उसी भूल भुलैया में ले जाने वाले, और मात्र एक दरवाजा आपके पास ऐसा हो जहां से आप छूट सकते हो। समझ में आया? और सौभाग्य से आप उस दरवाजे के किनारे खड़े हैं। लेकिन अनादि के अभ्यास के कारण क्या होता है कि दरवाजे को दीवार समझकर जाने देते। तो ये अवसर था, ये अवसर होने पर भी हमने उसे जाने दिया।
तो अब वापस कब मेल पड़ेगा? सोचो तो जरा, ये अवसर गया तो कहाँ मेल पड़े। अंधा व्यक्ति हो, वो ऐसे टटोलते टटोलते महल की दीवारों पर जाए, एक दरवाजे पे जाए, वहां पे कुछ नहीं खुलता, दूसरा जाए तो भी नहीं खुलता। ऐसे करते करते जो मोक्ष की तरफ खुलने वाला दरवाजा है, वही उसके पास में आए और उसे अचानक खुजली हो जाए, और क्या हर बार अपन बढ़ करते तो लाभ नहीं होता, तो इस बार भी छोड़ दे, वो अवसर हाथ में आके छूट जाए उसे। ऐसे ही आचार्य कह रहे 83,99,999 योनियों में इसका भला नहीं होता, एक मनुष्य पर्याय में भला होता है। और जैसे इसे मनुष्य पर्याय मिलती है, उसी क्षण उसे विषयों की खुजली होती है, और जैसे विषयों की खुजली होती है तो विषयों की खुजली में ये अपने स्वरूप को भूल जाता है, और फिर से वो 84 लाख योनियों में चला जाता है। इसीलिए संसार के स्वरूप का गंभीरता से विचार करो, सारी की सारी योनियां दुख रूप ही हैं, ये बात यहाँ सिद्ध हो जाती। एक भी अवस्था सुख रूप नहीं है, अगर होती तो हम यहाँ रहते ही, उसी में चले जाते, मोक्ष की इच्छा क्यों करते, वहीं चले जाते। फिर जीवन कैसा है? बोले जीवन जल के बुदबुदे के समान क्षणिक। बुदबुदा समझते हैं? परपोटा, पानी का परपोटा होता है, कितना होता है, एक क्षण का उसका अस्तित्व होता है, और उसके समान ये जीवन, और ऐसा जीवन हमें मिलता है। समझ में आया? इसलिए जल के बुदबुदे के समान ये जीवन है, तो हमें बहुत गहराई से इसका विचार करना चाहिए कि ये जो जल की बूंदों के समान ये निर्भव है, वो उसका कोई अच्छा उपयोग करें, सदुपयोग करें, ये नष्ट तो होने ही वाला। बोले पंडित जी ऐसी कैसी बात कर रहे हैं, हम तो पूर्ण आयु वाले हैं, 70 ईयर्स 80 ईयर्स, ये 70 80 ईयर्स के जीवन को आप जल के बुदबुदे के समान क्यों बोल रहे हो? अल्पायु में कोई मर जाता साल 2 साल में तो बोल देते, लेकिन भाई ये तेरी 70 80 साल की उम्र भी अगर देखी जाए तो सागरों की अपेक्षा तो बिंदु के समान। शास्त्रकार बड़ी सुंदर उपमा देते हैं, आपको पता है? वो कहते हैं कि जैसे अंधेरी रात में बिजली चमके, और बिजली के चमकने में आपको सुई में धागा पुरोना हो, तो कितनी तैयारी करनी पड़ेगी, समझे? अंधेरी रात में अगर बिजली चमके और उसमें सुई में धागा पिरोने में जैसे कितनी तैयारी की जरूरत है, वैसी तैयारी अपने को मनुष्य पर्याय में करनी चाहिए कि इतने क्षण अल्प समय में इतना बड़ा काम करना, और चुटकियों में निकल ही जाता है। समय की समस्या ये होती है कि कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता। समझ में आया? निकल जाता है, जब तक नहीं निकलता है हमको लगता है बहुत लंबा समय, 10 लाख क्षण में नहीं होता। पहले दिन जाते अरे अभी तो 10 दिन है, मैं राजकोट गया, अरे अभी तो 10 दिन है, पहले दिन तो लगता है 10 दिन, और जब 10वां दिन आ गया अरे पूरा हो गया। अहमदाबाद आए हुए मुझे 15 साल हो गए, पता ही नहीं चला। जन्म लिए हुए 36 साल हो गए, पता ही नहीं चला। दिनेश भाई भी हंस रहे होंगे, उनकी भी जितनी भी उम्र हो गई 60 65, वो भी कब निकल गई पता। सबका एक ही स्वरूप है। और ये मैं क्या कहते हैं, कुछ जीवन के अनुभव होते हैं जो मतलब आपको सिखाते हैं कि मेरी बड़ी बहन की शादी हुई, और बड़ी बहन की शादी होने के बाद में पिताजी और सब ऐसे बैठे थे, तब वो एक बात कह रहे थे कि पता ही नहीं चलता, ऐसा लगा जैसे मानो कल ही मेरी शादी हुई हो और आज मेरी बेटी की शादी, एक झटके में। मतलब उस समय कुछ रियलाइज होता है कि नहीं रियल में। और मैं आज ये बच्चों को देखकर भी मैं फील कर लेता हूँ कि भाई क्या कहते हैं कि कितने बड़े हो गए वो, देखते देखते 9 साल की वैदेही हो गई। मतलब सच में पता नहीं चलता, ऐसा लगता है कि वहीं के वहीं समय रुका है, लेकिन वो बुदबुदे के समान पूरा हो जाता है। जीवन के किसी भी मोड़ में आप जाओ, फ्यूचर आपको लंबा दिखेगा, पास्ट ऐसे छठ में निकल गया। ऐसे ही होता है कि नहीं होता है? विचार करो, समय कौन सा लंबा है? बोले जो व्यतीत ना हुआ हो वही लंबा है, बाकी जो बीत गया हो वो तो जल की बुदबुदे के समान ही। और आपका तो 50 60 साल का जीवन, देवगति का तो सागरों का जीवन होता है। समझ में आया?
इसीलिए इसका थोड़ा सा विचार करें और अगली बात अपन देखते हैं। और काया का स्वरूप कैसा है? बोले काया के स्वरूप में भी यही चार चार चीजें यहाँ पे बताई स्लाइड में। सबसे पहले काया अनित्य है। कैसी है काया? अनित्य है। अनित्य मतलब कोई ठिकाना, बिल्कुल ठिकाना नहीं है, रत्ती भर ठिकाना नहीं। आप गारंटी नहीं ले सकते कि आज रात को क्लास खत्म होने के बाद में कल आप उठेंगे कि नहीं उठेंगे, कौन गारंटी ले सकता है? रोज 2.5 से 3 लाख लोग रात को सोते हैं, फिर सुबह उठते नहीं है कि नहीं? ये फैक्ट है, विचार लो। रोज करीबन रोज के रोज दुनिया में 2.5 लाख लोग मरते रात को, जो सोते हैं सुबह उठते नहीं। क्या उनसे पूछो, क्या उन्हें इस बात का इल्म था, खबर थी कि भाई कल का दिन, आज का दिन हमारा आखिरी दिन होने वाला है? अनित्य ही है। तो प्रतिदिन एक नया है, ये जानकर आभारी हो और जिम्मेदार बने। आभारी हो अपने पुण्य कर्म के कि आपको एक दिन और मिला, और जिम्मेदार ये बने कि आत्म कल्याण का अवसर एक दिन के लिए और बढ़ा। हर दिन ये भाव आना चाहिए, क्योंकि कब रीत जाए ये जीवन है पानी की बूंद। हम पढ़ते तो सब हैं लेकिन याद नहीं रहता। पानी की बूंद कब मिट जाए, कब क्या हो जाए, किसको क्या पता। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए कब ये जीवन रीत जाएगा इसका कुछ भी ठिकाना नहीं है। सो उसका थोड़ा विचार करें। अनित्य है, असुचि है। शरीर कैसा है? असुचि मतलब मैला है, मलिन है, बराबर ना? ये इसके एक भी अंग ऐसा नहीं है जहां से आपके शरीर में से निर्मलता। कान में देखो तो मैल निकलेगा, नाक से देखोगे तो मैल निकलेगा, जहां से भी इसके द्वार है मैल ही निकलता। गुरुदेव श्री फरमाते हैं कि शरीर नो साचो एवो छे कि एमा मेवा मिष्टान नाखो तोय छता બધું વિષ્ઠા થઈને નીકળે છે। संचो एवो छे। विचार करके देखो, अपन पेड़ पौधों को बोलते हैं कि ये तुच्छ हैं, लेकिन उनमें हम खाद डालते हैं, और खाद में क्या होता है? खातરમાં શું હોય છે? બાયોજેક હોય ખાદ, જૈવિક ખાદ હોય। જૈવિક તો એમાં શું નાખો છો તમે? મલમૂત્ર વિષ્ઠા આદિ। તો એ લોકો પ્રોસેસ કરીને ફળ બનાવી દે છે। અને આપણે કેવા છીએ? રિવર્સ પ્રોસેસ વાળા, કે આપણે ફળ ખાઈએ, સબ્જી ખાઈએ, મેવા મિષ્ટાન ખાઈને પાછું બધાને શું કરી દઈએ? વિષ્ઠા બનાવી દઈએ। આપણે તુચ્છ ગણીએ, પણ એ તુચ્છ હોવા છતાં પણ એ વર્સ્ટ માંથી બેસ્ટ બનાવી દે। અને આપણે શ્રેષ્ઠ હોવા છતાં પણ બેસ્ટ માંથી શું બનાવી છીએ? વર્સ્ટ ચીજ બનાવી છીએ। આ કેવો સ્વરૂપ છે? આ એનો પણ શરીર છે, આપણો પણ શરીર છે। કહેવા માટે તો આપણો પંચેન્દ્રિય શરીર છે અને એકેન્દ્રિય શરીર છે, પણ એકેન્દ્રિય હોવા છતાં પણ એ વિષ્ઠાને ફળમાં બદલી દે, ને આપણે ફળને વિષ્ઠામાં બદલી દઈએ। ફૂલ ને બધી વસ્તુ જે આપણા કોન્ટેક્ટમાં આવીએ એ બધી વસ્તુ મલિન થાય। એવી આ સ્વરૂપની મહિમા છે, એ શરીરની મહિમા છે નકારાત્મક અર્થ। કેવો છે આ? કે જેને કોઈ ઠેકાણો છે નહીં, તો આપણે એના પ્રત્યે જ રાગ વધાર્યો। પછી દુઃખનું કારણ, દુઃખનું કારણ છે કે નહીં? આખા જીવન એના સાચવ કરીએ છીએ તો છેલ્લે તો દુઃખ જ આવવાનું। આવવાનો કે નહીં આવવાનો? હે? એટલા માટે દુઃખનું જ કારણ છે। અને પછી નિસાર છે, કઈ એના ફલફિલ નીકળતો નથી। ખરેખર જીવનમાં સૌથી વધારે જેના પ્રત્યે નિસ્સારતા તમને અનુભવ થાય છે કે થવું જોઈએ, આ શરીર છે। આખી જિંદગી એના માટે મથીએ છીએ તો છેવટે પોતાનો સ્વરૂપ આપણે જાત બતાવ્યા વગર રહેતો નથી। બોલે છે ને, આમ કાલે હું ક્લાસ લેતા લેતા આમ થોડું આમ ક્રોસમાં બેસેલો હતો। ક્લાસ પૂરી થઈ આમ દુખવા લાગ્યું। જો આ શરીર ધર્મનો કરો ચાહે કોઈ પણ કરો, એ તો પોતાને કે ને કે સહેજ આંકા ચૂકા થાવ તો આમ દુખશે તેમ દુખશે, કઈ પણ। એટલે નિસાર છે, એમાં મહેનત નિસાર છે। બ્યુટિશિયનમાં મહેનત કરે તો 0 થવાનું છે,